Good morning, children. Today the session that I am going to be taking is for exercise 6.3 angles. ये वीडियो सेशन में भी I had sent you this earlier also, but अभी भी बहुत सारे बच्चों को इसमें I think किसी किसी को प्रॉब्लम आ रही है एंगल्स का नेम लिखने में और लेबलिंग में. So I am doing a repeat session on this for today. Okay. So these are the different types of angles. I'm going to start with exercise 6.3. Today's date is 17th. Sorry about that. 17th of April 20. Okay, exercise 6.3. The topic is angles. Now this one here, one line is horizontal and the other is vertical. One is horizontal, the other is vertical. So this is a right angle. This is a right angle. What type of angle is this? Right angle. Here it is marked by this. Okay, it is marked like this. Next you have here this one. Now this one is slightly more than the right angle. This curve is slightly more than the right angle. Right angle is straight and this one is slightly bent this side, right? It is more than the right angle. So this one is obtuse angle. This one is obtuse angle. Okay. Here, this is the angle. Okay. Also, again I will mention this is the arm. These are two arms, 1 and 2. Okay, this point here is the vertex. It is the vertex. It is where these two arms meet. Okay, same in this one. These two are the arms and this is the vertex. What is this point? The vertex. Now this one, it is less than the right angle. It is less than the right angle. So this is an acute angle. This is an acute angle. Okay. The next one, it has one arm towards the left, one arm towards the right, and it is looking like a straight line. So this is a straight angle. This is a straight angle. This is the vertex. This is one arm. This is the second arm. Here also this is the vertex. This is one arm. This is the second arm. The next one, this one. This one is basically a zero angle. It is a zero angle because it has only one arm. There is no other arm. So it is a zero angle. Okay, so this is about the types of angles. How many types of angles did we see? Right angle, obtuse angle, acute angle, straight angle and zero angle. In zero angle, there is only one arm. The right angle, one arm is horizontal, the other is vertical. In obtuse angle, the arm is slightly more than the right angle. Okay, in acute angle, it is smaller than the right angle. In straight angle, one arm goes towards the left, one towards the right. In zero angle, only one arm is there. Okay, these are the types of angles. Now, next topic is naming the angles. Next topic is naming the angles. Here I have drawn 5 different types of angles. Now I have to name them. So, in order to name them, you can choose any name, whichever you like, right? So I'll start with this one. Let's start with A, B, C. Now see, I named the two arms AB and this is BC, right? So what is the name of the angle? Angle ABC.
एंगल का नाम क्या होगा, एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए, एंगल ए बी सी या फिर एंगल सी बी ए। हमको हमेशा वर्टेक्स को सेंटर में रखना है। what is the most important thing to keep the vertex in the center, so it will be angle ABC, मैं इसको नेम दे सकती हूँ, या फिर एंगल CBA, हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं इसको। ओके, सो द नेक्स्ट वन में हमारा वर्टेक्स यहाँ है, मैं इसको नेम दूंगी BOD। ओके, सो मेरा एंगल का नेम क्या हो जाएगा, मेरा एंगल का नेम हो जाएगा इधर एंगल BOD, या तो मैं BOD लिखूँगी या फिर मैं लिखूँगी एंगल DOB, एंगल DOB। ये जो लेटर्स है, या आप कोई भी लेटर्स ले सकते हैं, विच एवर यू वांट, PQR STU XYZ। सो लेट्स टेक दिस वन नाउ, दिस इज एन ऑब्ट्यूज एंगल, इट इज़ मोर देन राइट एंगल, राइट, तो ऑब्ट्यूज एंगल है। अब हम इसका नेम देंगे PQR। ओके, वर्टेक्स मैंने लिया है Q, वर्टेक्स कहाँ आएगा, सेंटर में, तो जब मैं नेम लिखूँगी सेंटर में वर्टेक्स आएगा, यानी या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी या मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, मैं यहाँ से स्टार्ट नहीं करूँगी। आंसर क्या होगा, PQR और एंगल RQP, या तो PQR या फिर एंगल RQP, ये एंगल का साइन है, उसके बाद हम इसका नेम लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट वन, इसमें फिर से देयर इज़ वन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वन वर्टिकल लाइन, तो ये क्या हो गया, राइट एंगल, ये क्या हो गया, राइट एंगल। अब हम इसका नेम देंगे XYZ। कि राइट एंगल का मार्क ऐसे होता है, तो हम इसको ऐसे मार्क करेंगे। नाउ XYZ। अब हम वर्टेक्स यहाँ है, तो वर्टेक्स को हम कहाँ रखेंगे, हमेशा सेंटर में, या तो हम X से स्टार्ट करेंगे या फिर हम Z से स्टार्ट करेंगे। तो XYZ, एंगल XYZ, या फिर इसका नाम हो सकता है एंगल ZYX। क्या हो सकता है, ZYX। तो ये नेमिंग है, ये इम्पॉर्टेंट है, और एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो है वर्टेक्स को सेंटर में रखना। नेक्स्ट, नाउ लेट मी थिंक ऑफ सम अदर लेटर्स, MNO। okay, so I have named this angle MNO. what is the name of this angle, angle MNO। या तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी या फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी, वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आएगा। दूसरा क्या ऑप्शन हो गया, एंगल ONM, एंगल ONM या फिर एंगल MNO। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया, नेमिंग द एंगल्स। फर्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ एंगल्स, नेक्स्ट हमने पढ़ा नेमिंग द एंगल्स। नेमिंग द एंगल्स में हमको वर्टेक्स सेंटर में रखना है, दोनों आर्म्स को हम कोई भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद जब हम एंगल का नेम लिखेंगे तो हमेशा वर्टेक्स को सेंटर में रखना है, लाइक O और B और Q और यर N, हमेशा वर्टेक्स जो है वो सेंटर में आएगा। आप फिर यहाँ से स्टार्ट कीजिए या यहाँ से स्टार्ट कीजिए, डजेंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, so next moving on to this question from exercise 6.3 C part, identify the types of angles marked in the figure। हमारे पास 3 types of images हैं। the first one है, that is you can see here 2 angles, right। first one मैं इसको छुपा देती हूँ। okay, just focus at the first one। नाउ दिस फर्स्ट वन में भी मैं पूरा नहीं देखूंगी, फर्स्ट वन में भी मैं थोड़ा सा पार्ट इसका हाइड कर देती हूँ। जस्ट लेट अस लुक एट, सपोज दिस वन, दिस पार्ट। ओके, नाउ दिस पार्ट इज अ राइट एंगल, इफ आई हाइड दिस आर्म तो फिर दिस पार्ट इज अ राइट एंगल, राइट। सो दिस इज एंगल ABC।
दिस इज एंगल ABC। तो ये तो हो गया नेम, लेकिन ये कौन सा एंगल है, टाइप भी बताना है हमको इसका टाइप। ये कौन सा है, इज इट राइट एंगल, इज इट ऑब्ट्यूज एंगल, इज इट एक्यूट एंगल। जब हमको टाइप बोला है तो हम टाइप बताएंगे, जब हमको नेम बोला है तो हम नेम बताएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन इज आस्किंग आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ एंगल्स मार्क्ड इन द फिगर। सो दिस एंगल ABC, ये जो एंगल है हमारा, ये वाला एंगल पर्टिकुलरली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, I'll just color it and show it to you. This one, this is a right angle because this is vertical and this is horizontal. So I can write down angle ABC is right angle. Okay, next जो हमारा है एंगल DCB, एंगल DCB, एंगल DCB क्या है, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा, 90 से थोड़ा सा ज़्यादा और राइट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो जो राइट एंगल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल, दैट इज़ ऑब्ट्यूज एंगल। ये क्या है, ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो इस फिगर में हमारे पास दो एंगल्स हैं, एंगल ABC एंड एंगल DCB। वन इज राइट एंगल, द अदर इज ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेकेंड फिगर, एंगल EFG और एंगल FGH। दो वर्टेक्स है हमारे पास, एक F और एक G, दो जगह हमारे पास एंगल्स बन रहे सेम पहले जैसे। अब अगर मैं इसको हाइट कर दूँ, ओके, तो ये है हमारे पास EFG, इसको हम हाइट कर देते हैं ऐसे, EFG। अब ये क्या है, इज इट अ स्ट्रेट एंगल, नो इट इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन। इज इट ज़ीरो एंगल, नो इट इज़ मोर देन 90, येस। सो दिस एंगल, एंगल EFG, ये जो हमारा बन रहा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है। एंगल EFG, ये जो हमारा एंगल बन रहा है दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सो द नेक्स्ट वन एंगल FGH। अब मैं इस आर्म को हाइड कर दूंगी, सो FGH, यू हैव योर FGH, ठीक है। तो FGH क्या है, इज इट 90, लेस देन 90, मोर देन 90। अब ये उल्टा है, अगर हम इस तरफ देखें तो इधर 90 स्ट्रेट जाएगा, राइट। सो FGH इज स्लाइटली लेस देन 90, 90 होता तो स्ट्रेट होता G से, बट इट इज़ नॉट 90। अगर मोर होता तो इस तरफ हो जाता, राइट, बट ये इस तरफ है, यानी ये थोड़ा सा छोटा है, यानी इट इज़ एक्यूट एंगल, एंगल F ठीक है। अब नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर भी ये वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ तो दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल, दिस इज़ वर्टिकल, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल। सो आई हैव गॉट टू एंगल्स हियर, वन इज़ दिस वन and the other is this one, right? So first I will name this one angle PQR, this is right angle, and this one angle SRQ, this is also right angle. So here we have got both the types of angles as right angle. Angle PQR is right angle and angle SRQ is also right angle, right? So this is all for today. हमने 3 क्वेश्चंस किए हैं बेसिकली। सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ एंगल समझा, फिर हमने उनको नेमिंग समझा, और उसके बाद हमने उनका टाइप्स ऑफ एंगल समझा।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट. ये वर्क जो है अब आपको समझ में आ गया है. यही वर्क का स्क्रीनशॉट आई विल सेंड यू. यू कैन डू इट इन योर school notebook, and if you want you can just do this as your classwork. Okay, and अदर देन दैट इस पेज के अलावा आपको सिर्फ अब एक्सरसाइज 6.3 प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में. उसके तीनों पार्ट्स ए बी एंड सी. उसमें सेम ऐसे ही क्वेश्चंस है. नेमिंग द एंगल्स और आइडेंटिफाई. ये क्वेश्चन हमको दोबारा रिपीट करना है. Understood? This also you have to repeat in your notebook, and this also you have to repeat. Take it as CW or HW, whatever, but you have to repeat these two pages and exercise 6.3 A and B part. Okay.